الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال تبارك وتعالى في فرقان الحميد فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آج دین کے فکر لیے ہوئے بیٹھے تمام میرے مسلمان بھائی اور ساتھیوں، رب کریم کا ہم جتنا شکر ادا کریں بہت ہی کم ہے، کیونکہ پروردگار نے کہا حبیب بتلائیے اپنے امت کو کہ رب جس سے محبت کرتا ہے، رب جسے پسند کرتے ہیں، اسی کو اپنے دین کی فکر کو لے کر بیٹھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے کہ رب کریم جس سے خیر کا احسان کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اسی کو دین کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں۔ اس کو ہماری زبان میں اگر بولا جائے سمجھنے کے لیے کہ رب کریم جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، اس کو اپنی دین کی فکر کو لے کر بیٹھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ سیدھی بات، رب کریم نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے، ہمارا فکر ہے کہ کیسے ہمارا گاؤں، جیسے ہم جڑے مسجد سے، جیسے ہم نماز پڑھے، کیسے ہمارا پورا گاؤں، پورا محلہ، اسی طرح ہمارا دیش پورے جہاں میں پروردگار کا نام لیوا بن جائے، پورا جہاں بالخصوص ہمارا علاقہ کیسے مسجد سے جوڑ جائے، بس اسی وجہ سے ہم لوگوں کا یہاں بیٹھنا ہوا ہے نہیں؟ اسی وجہ سے ہم لوگوں کا یہاں بیٹھنا ہوا ہے۔ اب ہمارا فکر ہے کہ لوگ مسجد سے جڑے، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھ کر ان کے منشا کے مطابق زندگی گزارنے والا کیسے بن جائیں، اسی فکر کو لے کر بیٹھنا ہوا ہے۔ پروردگار پر امید ہے کہ دین کی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کے لیے جیسے فرشتہ اعلان لگاتا ہے کہ جو بھی دین کی شریعت کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، فرشتہ تم اعلان کرو کہ ان سب کی میں نے مغفرت کر دی۔ رب کریم کی ذات پر ہمیں اتنا تو امید ہے، یقیناً ہمارے بارے میں بھی آسمانی فضاؤں میں یہ اعلان ہو رہا ہوگا کہ فرشتے یہ اعلان کرو کہ جو بھی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی لا الہ الا اللہ کی فکر کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی محمد الرسول اللہ کی فکر کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ہم نے مغفرت فرما دی۔ رب کریم کی ذات پر ہمیں امید ہے، ہم تہہ دل سے رب کریم کا شکر ادا کریں۔ پروردگار تو نے ہمیں قبول فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد جن کی وجہ سے ہمیں یہ دین ملی ہے، جن کو رب کریم نے ذریعہ بنایا ہم تک دین پہنچنے کے لیے، جو ہم تک یہ شریعت، ہم تک یہ دین پہنچانے کے لیے بہت قربانیاں پیش کر کے گئے ہیں، جو مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے اشرف اور سب سے معتبر شخص ہے، رب کریم جن کے بارے میں کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب کریم جن کے بارے میں کہتے ہیں حبیب کہہ دو اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی رب کریم کو پانا چاہتا ہے، وہ آپ کی اتباع کر لے۔ پروردگار کی طرف سے اس پیارے حبیب پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں، برکتیں نزول ہو، ہم سب دل کی گہرائی سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائی، آج ہم جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، ادیش ہم پہلے ہی جان چکے ہیں، ادیش ظاہر ہو چکا ہے کہ آج ہم نے عبادت کر لی، آج ہم نے رب کو منانے کی کوشش کر لی، آج رب ہم کو پسند کر کے بلا لیا ہے، تو رب کی در پہ یہ گزارش کریں کہ پروردگار آج جیسے آپ ہم نے پسند کیا ہے، ہمارا کوئی خطا، کوئی بھول، کوئی چوک ایسا نہ ہو جائے جس وجہ سے پھر ہم کو اس مسجد سے کٹ جانا پڑے، جس وجہ سے بھی اس مسجد میں آنے ہم کو توفیق نہ ملے۔ ہم پروردگار سے گزارش کریں، درخواست کریں کہ اللہ ہم سب کو تو ایک ہی بار میں مرنے تک کے لیے
जन्नत तक पहुंचने के लिए कबूल फरमा ले। सब कहें आमीन। उसके साथ साथ आज हमने फिक्र अपना कर लिया है, लेकिन हमारे हबीब, हमारे जो नबी आकाए मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दिल की कुड़हन थी, जो तड़प था, परवरदिगार ने कहा मेरे दोस्त, मेरे हबीब, तुम उम्मत के लिए इतना फिक्र क्यों करते हो? क्या उनकी फिक्र, उनके बारे में सोच सोच के, उनको तबलीग कर कर के अपने आप को हलाक कर दोगे? आखिर में परवरदिगार ने कहा नहीं मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, तुम उन लोगों के लिए अपने आप को हलाकत में पूरे मुकम्मल तौर पर मत डाल दो। हाँ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सोचिए मेरे नबी की कुर्बानी के बारे में, जिनके बारे में रब करीम ने फरमाया कि मेरे दोस्त, मैं तेरा अगला और पिछला और मौजूदा तमाम खताओं को माफ कर दिया, मैंने तुझे मासूम कर दिया, मैंने तुझे हौज़े कौसर दे दिया। मेरे दोस्त, मैंने तुझे क़यामत के दिन जब सब कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, मैं तुझे पावर दे रहा हूँ, तू उस दिन मुझसे फरियाद करना कि तू सबके बारे में, तू अपने उम्मत के बारे में, तू अपने लाडले दोस्तों के बारे में, सहाबाओं के बारे में फरियाद करना। मेरे दोस्त, मेरे हबीब, मैं तेरी फरियाद कबूल कर लूंगा। जिस दिन किसी का ना सुना जाएगा, उस दिन हबीब तेरा सुना जाएगा। वो नबी जिनका मकाम रब करीम खुद ऊंचाई पर रखे हैं, उस नबी, वो नबी, वो हबीब, वो हमारा प्यारा आका उम्मतों की राह रास्त पर लाने के लिए, उम्मतों की हिदायत के लिए कितनी कुर्बानियां देकर चले गए। मेरे मुसलमान भाइयों, जरा सोचो तो सही, हम उस जिम्मेदार नबी के जिम्मेदार उम्मती हैं। हमारा नबी बहुत ही जिम्मेदार थे। दिन दिन भर दीन की दावत देने के लिए लोगों के दर दर पे जाकर पड़े रहना, लोगों के दर दर के टोकरे खाना, लोगों को बाजारों में लोगों को बुलाना, दीन की शरीयत की तरफ वहदानियत का दावत देना। इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम को पत्थर की बारिशें बर्दाश्त करनी पड़ी। लोगों ने, कुफ्फारों ने, अपने खानदान के लोगों ने प्यारे हबीब के मुंह पर चप्पल फेंक के मारे, प्यारे हबीब ने बर्दाश्त कर लिया। अपना ही खून, अपना ही खानदान, अपना ही चाचा, जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत होता है, अगर भतीजे को कोई चीज की जरूरत है, भतीजा चाचा से दरखास्त करता है, चाचा जान मुझे ये चाहिए, वो चाचा जो फौरन लाकर भतीजे के लिए हाजिर कर देता हो। ऐसा खानदान, ऐसा खूनी रिश्ता। जब आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम हक को लेकर दुनिया में आए, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह की तरफ बुलाने लगे, तो वो चाचा भी अपना साथ छोड़ दिया, मोहम्मद को पागल कह दिया, मजनू कह दिया, लोगों में ऐलान चलाया, मक्का वालों सुनो, मोहम्मद की बातों को तस्लीम मत करना, ये तो मजनू हो चुका है, माअज़ बिल्लाह, ये तो मजनू हो चुका है, नाऊज़ बिल्लाह। कहते कहते मोहम्मद के मुंह पर वो चांद सा चेहरा, जिसके बारे में आयशा कहती कि मैं एक मर्तबा बैठा था, चांदनी रात थी, मैं एक मर्तबा बैठी थी, चांदनी रात थी, आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आंगन में तशरीफ फरमा थे, चांद की रोशनी प्यारे आका के चेहरे पर पड़ते, मैं चांद को देखती, आका को देखती, चांद को देखती, आका को देखती, चांद से कहती, चांद बता तू खूबसूरत है या मेरा आका खूबसूरत है, मेरे हबीब खूबसूरत है? आज मैं कंफ्यूजन में हूँ, मुझे एहसास नहीं हो रहा, तुझे खूबसूरत बताऊं या इस हबीब को खूबसूरत बताऊं? फिर खुद ही अपने मन में सवाल का जवाब तैयार कर ली कि नहीं नहीं, चांद तुझ में तो धब्बा है, तुझ में तो स्याही का आकार है, तुझ में तो कुछ ना कुछ नुक्स है, मेरे आका को देख ले, मेरे हबीब को देख ले, मेरे प्यारे नबी को देख ले, इसके चेहरे पे कोई नुक्स नहीं है। वो जलजलाता हुआ चेहरा, वो डगमगाता हुआ चेहरा, उस चेहरे पर इस दीन की तबलीग के खातिर जब कुफ्फार, वो तो दूर की बात, जब अपने ही लोग थूके, बताओ मुसलमानों कैसा एहसास होता होगा। मेरे मुसलमान भाई, नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को इस दीन के बारे में कैसे कुर्बानी पेश करनी पड़ी, अस्हाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कैसा कैसा कुर्बानियां देकर चले गए, हम सबको मालूम है। पथरीली जमीन है, तपती हुई
रेत है उसमें सुलाकर ऊपर पत्थर रख दिया गया, रेत में घसीटा गया। सोचो मुसलमानों, बयान करना असहाबे कराम की हयात को, बयान करना नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की कुर्बानी को बहुत ही आसान है, यहाँ बैठकर बोल देना बहुत आसान। लेकिन हमें चाहिए कि उस आका की अमानतदारी जैसे हमें पहुंची है, उस अमानतदारी की इल्म को जो हम जानते हैं उसको अमानतदारी के साथ आगे नस्ल तक पहुंचाएं। उनकी कुर्बानियों को याद करें, उनकी परेशानियों को याद करें, उनकी तकलीफें बर्दाश्त करने को याद करें, उन पर जुल्म ढाए जाने वाले को याद करें, और उसी तरह नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का दीन पहुंचाना, असहाबे कराम का दीन पहुंचाना याद करते करते, जैसे अमानतदारी के साथ हम तक पहुंची कुरान, जैसे अमानतदारी के साथ हम तक पहुंचा ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे अमानतदारी के साथ हम तक पहुंचा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जैसे हमने जाना नमाज कायम करना फर्ज है, रमजान का रोजा रखना फर्ज है, सलात कायम करना, और इसी तरह अपनी इस्तिताअत के बकदर अगर हो जाए तो हज को अदा करना फर्ज है। शरीयत के अहकाम को जैसे हमने सीखा है, हमारे लिए जिम्मेदारी है, हमारे लिए जरूरी है कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हुक्म दिया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम दूसरों तक पहुंचाओ, तुम दूसरों तक पहुंचाओ, तुम दूसरों को दीन के लिए फिक्र करो, दूसरों के बारे में फिक्र करो। मेरे मुसलमान भाई, जरा बताओ, क़यामत के दिन सारे अंबिया अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे, तमाम असहाबे कराम मौजूद होंगे, जो इस दीन को फैलाने के लिए, तबलीग के लिए कुर्बानियां पेश करते करते चले गए, सब मौजूद होंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, अब से लेकर क़यामत के सुबह तक जितने भी इंसान आए हैं, आएंगे, चले गए हैं, चले जाएंगे। रब करीम कहते हैं सबको वहां पे मौजूद होना होगा, सबको वहां पे हाजिर होना होगा। सोचिए मेरे भाई, जब सबको हाजिर होंगे तो इस तबलीग के लिए जिन्होंने कुर्बानियां पेश की, इस तबलीग के लिए जिन्होंने पत्थरों की बारिशें बर्दाश्त की, इस तबलीग के लिए जिन्होंने इस शरीयत को पहुंचाने के लिए जिन्होंने गर्म रेत पर सोना पसंद कर लिया, लेकिन तबलीग को छोड़ना, शरीयत को पहुंचाना, शरीयत को पहुंचाते हुए छोड़ना पसंद नहीं किया, वो भी जब मौजूद होंगे हमको खड़ा किया जाएगा। परवरदिगार पूछेंगे, बताओ क्या तुमने तबलीग की थी, क्या तुमने शरीयत को पहुंचाया था, तुम तक तो पहुंच गई, क्या तुमने आगे पहुंचाया, तुमने तो नमाज पढ़ लिया, क्या गाँव वालों का फिक्र किया, तुमने तो सलात अदा कर लिया, क्या कभी सोचा कि मेरे भाई जो मस्जिद में नहीं जाता उसको कैसे मैं मस्जिद के साथ जोड़ दूं। मेरे मुसलमान भाई जरा सोचो, जिन्होंने इन मस्जिद के साथ जोड़ने के लिए, अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए कुर्बानियां पेश करते करते चले गए, वो जब देखेंगे कि अगला नस्ल, हमारा नस्ल कुर्बानियां पेश नहीं की, परवरदिगार के सामने हमारा पूछ हो गया, क्या जवाब देंगे? बताइए, क्या जवाब देंगे हम? हाँ, अगर हमने पहुंचाया, अगर हमने अमानतदारी के साथ जैसे हम तक पहुंचा, दूसरों को सिखाया, दूसरों को जोड़ने का काम किया, तो परवरदिगार कहते हैं कि उस दिन हर कोई कहेगा सादिक बात, और जिसको रब्बे करीम कहने का ऑर्डर देगा वही कहेगा भला बात, अच्छी बात। अब अगर हम अच्छा काम करके दुनिया से जाएंगे तो वहाँ अच्छी बातों का जवाब दे पाएंगे, और अगर हमने अच्छा काम ना किया, अच्छा कामों में एक काम ये भी है कि जो हम जानते हैं वो दूसरों तक पहुँचाना, ये भी एक अच्छा काम है। अगर हमने ये किया, परवरदिगार ने पूछ लिया, तो कह पाएंगे कि परवरदिगार नहीं, हमने तो जितना हो सका हमसे, हमने कोशिश तो की है, लेकिन तेरा जो मंशा था, तेरा जो हक था, उसको अदा ना कर पाया। परवरदिगार कहेंगे, बंदा ये तेरी खुलूसियत की बात है, तूने हक को कबूल कर लिया, तूने कोशिश तो किया था, लेकिन मेरे मंशा के मुताबिक नहीं था, ये भी तूने इकरार किया। चल मेरे बंदा, तूने जब मुजाहदा किया तो मैं रब हूं, मैं कैसे अपने कमजोर बंदों को
उससे फेर दूं। तू जब मुजाहदा किया तो मैं उसका बदला तुझे देकर ही रहूंगा। कसम खुदा की, फरिश्तों से परवरदिगार कहेंगे, ऐ मेरे फरिश्तों, लो मेरे इस हबीब के दोस्त को लो और जाके जन्नत में दाखिल करो। क्यों? क्योंकि इसने मेरे हबीब की अमानतदारी को अपने सीने लिया, अपने आप में अमल पे लाया और इसी तरह उसी अमानतदारी को दूसरों तक पहुंचा दिया। मेरे मुसलमान भाई, हमको तैयार होना पड़ेगा उस दीन के लिए। जिंदगी भर मतलब हमेशा के लिए इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी करने वाली जो रास्ताएं हैं, उन रास्ताओं में से एक रास्ता ये भी है कि हम जो सीखे हैं उसको दूसरों तक पहुंचाएं। और पहुंचाने के लिए जराए बहुत सारे हैं। उनमें से जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, जो उम्र दराज हो चुके हैं, उनका सीखना और सिखाना दोनों के लिए एक रास्ता तो बिल्कुल मुतय्यन है, वह है दावत व तबलीग का रास्ता। इंशाअल्लाह तैयार है निकलने के लिए।